Hello, everyone. So, I hope you have made the synopsis to all of you. So, guys, today we will discuss the, important question asked by the examiner during your synopsis. Okay. Here we are talking the synopsis, not the dissertations. Okay. So, only those students can see, the questions are asked by the examiner during the synopsis. Okay. So I have written, 8 or 10 questions, and I'm make sure that these questions are asked by the examiner. Okay, you should know it. First of all, what is the research? Tell me your topic name, problem name और research. Okay, research को ही हम problem भी बोलते हैं, research को ही हम study भी बोलते हैं, research को ही हम topic भी बोलते हैं. ओके तो these all are synonym. रिसर्च क्या चीज होती है? रिसर्च इज द सिस्टमेटिकली इंक्वायरी ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम. राइट, ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है. राइट, इसमें आप देख सकते हैं. आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू. रिसर्च इज अ सिस्टमेटिकल इंक्वायरी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. रिसर्च मीन्स प्रॉब्लम. रिसर्च बेसिकली ही प्रॉब्लम होती है. ओके, रिसर्च इज ए प्रॉब्लम बेसिकली. राइट, तो रिसर्च with the help of, with the method of the research, okay, we can solve that problem. Okay, guys, I want to tell you, whatever, listen me carefully, this is the important, whatever you are looking with your open eyes, आप क्या देख रहे हैं? ओके आप अपने घर में आप स्कूल देख रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हैं, यू हैव द मोबाइल, यू हैव द कार. सो वट एवर यू आर लुकिंग विद योर ओपन आईज, do you know this is the result of the research? Yes. अब नाउ आईफोन कौन सा आया है? आईफोन 17 प्रो आ गया. राइट, एवरी ईयर देखिए आईफोन का लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, बिकॉज रिसर्च इज गोइंग ऑन इट. अभी 20 years back, 25 years back, there were nobody has the mobile phones. How the mobile phones come in the hand? By through the research. आज से 50 साल पहले, 50 years before, राइट, मतलब we were watching the televisions, we were listening only radios, and with the help of a research televisions came, right? And the person was saying you can watch the television in your palm, in your hand. तो अब देखो मोबाइल हम देख रहे हैं, देखिए. So this is all the result of the research. अब मेथड्स आ गया, न्यू एंड न्यू मेथड्स आ गया, मेथड्स हैज कम. प्रोजेक्टिव मेथड आ गया, ह्यूरिस्टिक मेथड आ गया, लेक्चर मेथड तो यू ऑल नो, discussion method you all know, but project method, heuristic method, there are a lot of new methods has come in your study. How you can say that if you have done the B.Ed M.Ed 10 years back, and you can't say that ki today you do not have to update yourself? So research is the, whatever you are looking, your surroundings, this is all result of research. You are you are traveling, okay, you are riding a motorcycle, you are going by the car, okay, watching the roads, right, red light, green light, whatever you are looking at, this is all the result of the research. That's why it is called that, it is said that teacher must have the research aptitude. Research क्या चीज है? Research is a systematical inquiry to solve a problem. Guys, you are teaching in the class, some of your students are not paying attention, so you don't have to scold that student. आपको उनको डांटना नहीं है. You have to find the root cause, what was the reason behind it. Okay, you have to work on that particular reason, student will automatically start learning. Okay, so what you do that you start lose your patience. ओके, हम ये जो कहते हैं ना स्टूडेंट नालायक था, ये था, वो था, these all are excuses because we do not have the knowledge of research, we do not have the knowledge of philosophy, we do not have the knowledge of psychology, which is your, in your B.Ed or M.Ed, it is called research methodology. Okay, so tell me of your topic name, examiner can ask. Okay, तो हम important questions discuss कर रहे थे which are asked by the examiner. तो here you have to tell your topic name, right? ये देखो example मैंने दी हुई है, जैसे emotional intelligence of a secondary school students in relations to their altruism. Okay, ये second question बहुत important है.
ये आपने जरूर इसको याद करना है, ठीक है। तो ये आता है आपका सिग्निफिकेंस के अंदर, नीड के अंदर। एग्जामिनर कैन आस्क फ्रॉम यू, इसको फ्रेम कर सकता है, व्हाई हैव यू चोजन दिस स्टडी, व्हाई हैव यू टेकन दिस स्टडी। Okay, some of them you have taken the high school students and senior secondary students as a sample. Am I right? Examiner can ask, why have you taken only the adolescents? Why not the adults? Then what will you say? Right? What is the significance of your study? तो इन ये भी आपको याद करना है। ओके, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग, ये देखो अंडर द सिग्निफिकेंस ये सारी सारी चीजें आ जाती हैं। मीन्स बेसिकली व्हाई हैव यू टेकन दिस टॉपिक, अंडर द सिग्निफिकेंस आई एम टॉकिंग, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, ओके, एंड व्हाई यू हैव ओनली टेकन द एडोलेसेंट्स। ओके, तो दिस इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी, और इट इज कॉल्ड द जस्टिफिकेशन, व्हाई हैव यू चोजन दिस टॉपिक। ओके गाइज, नेक्स्ट आ गया सैंपल, है ना। सैंपल आपको पता ही है, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल साइज, सैंपल फ्रेम, ठीक है, ये सारे मैंने ये देखिए यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस भी कर लिए अभी जस्ट हमारे, ठीक है। सैंपल साइज हो गया वो साइज ऑफ योर सैंपल, 100 स्टूडेंट्स या 200 स्टूडेंट्स इज द सैंपल साइज ऑफ योर स्टडी, ठीक है। सैंपल फ्रेम हो गया आपके वो कंप्लीट पर्संस दैट एलिमेंट्स कम्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है, फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन, राइट। इन शॉर्ट भी देखिए मैंने लिखा हुआ है, सैंपल मींस पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, सैंपल साइज इज नंबर ऑफ यूनिट्स इन दी सैंपल, मींस 100 स्टूडेंट्स और 200 स्टूडेंट्स, ओके। और सैंपल फ्रेम क्या हो गया, लिस्ट यूज्ड टू सिलेक्ट द सैंपल, वो सारी की सारी लिस्ट, राइट। डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल, हाँ मेनी टाइम एग्जामिनर आस्क, तो इसका आंसर क्या है, सैंपल क्या चीज है, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अब आप ही के केस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन द 100 हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ द चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट या लुधियाना डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल, ओके। सो दिस इज योर सैंपल, 100 या 200 हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट इज योर सैंपल, ओके। इफ इट इज आस्क्ड बाय यू आपकी पॉपुलेशन क्या है, तो पॉपुलेशन क्या होगी आपकी, वो जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स है ना, लुधियाना के जितने भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो सारी की सारी पॉपुलेशन होगी, गॉट इट। सो हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ all the high school students of the Ludhiana district is the population, and from the populations I have chosen only 200 high school students or secondary school students. This is your sample, and that sample represents the whole population. Got it ना, आगे ना समझ, तो वो है ना आपके माइंड में ये आता है ना, वाई लुधियाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुधियाना, फिरोजपुर, होशियारपुर, तरन तारण, अमृतसर, बठिंडा, वट एवर इज इन यूर इफ, तो इट मीन्स इफ यू हैव सिलेक्टेड द लुधियाना, तो all the schools of the Ludhiana, all the high school students of the Ludhiana, that would be your population, and from all the schools you have taken only 2 schools with 200 students, this is your sample, okay। तो ये मीनिंग लिखा ही हुआ है, पॉपुलेशन रेफर्स द एवरीथिंग, और सैंपल ये देखो, पॉपुलेशन ऑल स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, और सैंपल क्या हो गया, 100 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इफ यू हैव टेकन द 100 स्टूडेंट्स ऑफ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, तो पॉपुलेशन क्या होगी, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, और सैंपल क्या होगा, 100 स्टूडेंट्स ऑफ द लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, ओके। इफ यू हैव टेकन द लुधियाना एज योर सैंपल। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, रिव्यू क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इट गिव्स बेस टू योर स्टडी बेसिकली, ठीक है, पर्पस ही दिखती हैं। ये देखो, प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप्स, इट गाइड्स द रिसर्च मेथोडोलॉजी, सपोर्ट्स फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, राइट। सो वट एवर द टॉपिक यू हैव सिलेक्टेड, उससे रिलेटेड रिव्यूज आपने जो पढ़ा होता है सारा, वो आपने मेंशन करना होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर कैन आस्क व्हाट द रिव्यूज यू हैव taken, so you all have to tell these reviews I have taken, okay, and I have found the research gaps, so these are my research objectives, तो ये सारे आपके research objectives बन जाएंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस भी डिस्कस हो गया अभी पीपीटी में बिफोर दिस लेक्चर, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या चीज होती है, एक स्टेटमेंट होती है, ये देखो टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है,
किसी स्टूडेंट ने स्टेटमेंट बोल दिया था, ओके, व्हेन द ऑफलाइन आई वाज टेकिंग क्लास, तो इट इज ए टेस्टेबल स्टेटमेंट। हाई या यू कैन से हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट नॉट अप्रूव्ड येट, ओके। तो बेसिकली वट एवर द रिसर्च टॉपिक यू सिलेक्ट, बिफोर इट यू हैव टू मेक द हाइपोथेसिस। ये देखो, हाइपोथेसिस इज द प्रपोज्ड, हाइपोथेसिस इज द प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन। हाँ, प्रिडिक्शन बहुत बढ़िया वर्ड है, हाइपोथेसिस ऐसे याद रख लो, हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन है, ओके। प्रिडिक्शंस है, अजम्पशन है, सपोजिशन है, ओके, मे और मे नॉट बी ट्रू, है ना, इन द एंड ऑफ द स्टडी। For example, your topic is you want to study the emotional intelligence of adolescents in relations to creativity. You want to check that, and hypothesis आपने वो ले लिया है, 3 or 4 hypotheses you have taken, but in the end you come to know that whatever the hypothesis you have taken, they all have rejected. It doesn't mean कि your research is rejected, okay, your whole of the dissertation is rejected, it does not mean, okay. So एक study है, you are going to do that, study can be accepted, study can be rejected, okay, but it doesn't mean your dissertation has rejected, okay, because you uh, in the starting, मतलब you have written that you want to check that if there will be no significant difference between the emotional intelligence and creativity among adolescents, right? अब आगे जाके you check it whether it is accepted or rejected, ओके। डिटेल में करेंगे हम वन बाय वन, ओके। ये तो सिंपल है, सिनॉप्सिस का सिंपल होता है, राइट, ये और आपका वैसे भी सेमेस्टर 1 है ये। ऑपरेशनल डेफिनेशंस, ऑपरेशनल डेफिनेशन जरूर यूज कर लो। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल यू हैव यूज्ड इन योर रिसर्च वर्क, फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटीज आर योर 2 वेरिएबल्स, ओके। तो इनके ऑपरेशनल डेफिनेशंस एग्जैक्टली क्या वेरिएबल बोल रहे हैं उसको आपको याद करना है, ओके। डिलिमिटेशंस, डिलिमिटेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। डिलिमिटेशन मींस इट सेट द बाउंड्रीज, तो यही यही पूछे जाएंगे आपको, ओके। सो एक बार अपना ओवरऑल अपना यू हैव टू सी योर whatever you have made your synopsis, okay. So delimitation means you set up the boundaries of your study, okay. और synopsis क्या चीज होता है, why you make the synopsis? तो synopsis क्या, एक brief summary of the research है, और ये स्टेप्स हैं सिनॉप्सिस के। टाइटल ऑफ, इंट्रोडक्शंस, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्कोप एंड लिमिटेशन और एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ओके। लास्ट में रहेगा रेफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है, लास्ट में आपको रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफीज लिखनी होती हैं। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ऑल। तो यही क्वेश्चंस गाइस पूछे जाएंगे आपसे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर आल्सो।